the molecular weight of the compound is X. Okay, so you see that here that 20% of this X is actually 16 gram. You need to find out the value of X. So how can you find out this one? You have to write this one, 20 upon 100 into X is equals to 16. Now this X will remain here, the 16 into 100 will comes here and 20 will comes down. When you cut it, you will get here 20 ones and 20 fives. When you multiply this one, you will get 6 fives, 16 fives, 80. Yes, 80. Got it? Very good. So this one is the 80. Got it? 80 is the molecular weight of 80 is the molecular weight of this compound. So what will be the weight of this one? What would be the weight of this one? You can simply predict by using 60. You have to multiply minus. What you have to do? You have to 80 minus 16, and then you will get what? You will get beta. You will get here 64. Got it? Got it? Easily solved. So this is the molecular weight. Actually, M is in the form of M, so it is equivalent to its molecular weight. Like 16 is the molecular weight of oxygen here. Okay, in the similar way, it is also the mass of this one and it is also the molecular weight of this one. Okay, got it? Got it? So let's move to the next problem. We have another problem similar to this one. You need to solve this problem again. There is a metallic oxide in the form of M2O3 contain 40% oxygen. Find out the atomic weight of M and also the molecular weight of M2O3. अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि M2O3 में ऑक्सीजन जो है वो 48% है. ठीक है, सो आप लिखते हैं यहाँ पे M2O3. ओके, ये आपको कितना गिवन होगा बताओ. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर? टोटल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 48. ठीक है, अगर मैं इसका पूरे का वेट कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये जो है 48 किसी एक नंबर का यानी x का कितना है, दैट इज 48. So 40% of x is 48. 40% of x is 48. So 40% of x is 48. So 40 upon 100 into x is equals to 48. So x is equals to 48 into 100 upon 40. When you divide it, you will get here 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 times and this will be 2 times. Okay, and when you divide it 2 ones are 2 and it will be 24. So x is equals to 24 into 5. That will be x is equals to कितना आया, that is simply 120. So 120 is the weight of this compound. Got it? If the 120 is the weight of this compound, then what will be the total weight consumed by M2? सो 120 इज पूरा है. ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग 48. दैट विल बी द 72. दैट डिलेमा इज गोइंग टू हैव द करेक्ट आंसर. 72 इज द वेट. 72 आया हमारा किसका, दैट इज द वेट ऑफ दिस कंपाउंड, सॉरी दिस कंज्यूम, दैट इज M2 का वेट इतना है. तो M2 का वेट अगर 72 है, देन व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M? दिस विल बी सिंपल. M is equals to M2 is equals to 72, then M will be equals to 72 divided by 2, that will be 36. Got it? Got it, or still having some doubt? Got it? Here's another next question. How many neutrons are present in 1 drop of water at 4 degrees Celsius? It is being given that 20 drop is equals to 1 ml. We have a 20 drop and it is equals to 1 ml. क्या हम इसमें 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? अच्छा, लॉजिक के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं.
ओके ओके, मैंने कल क्या बताया था आपको, एक मिनट बेटा, किसी कॉल आ रही है, एक मिनट, कि इस क्वेश्चन में हम लोग 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते. वाई वी कैन नॉट यूज़ दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज सिंपल बिकॉज डियर स्टूडेंट, water is a liquid and that is only used for the gases. Any volume, we can see, we were discussing that any gas at 1 mole or at STP and it is going to have 1 mole, then it will occupy volume that is 22.4 liter, and it will not be used here because here water is in liquid state and that is only applicable for the gases. Okay, so 22.4 लीटर जिसके भी दिमाग में आ रहा था वो बिल्कुल निकाल के रख दो अलग. ठीक है, तो फिर यहाँ पर ml क्यों दे रखा है, ये वॉल्यूम क्यों दे रखा है? तो बेटा हम लोग को पता है ना, हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है. हम लोग इस ml से घबराना नहीं है. ये ml जो है कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली इनटू ग्राम्स. हमारे पास रिलेशन होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम. तो जब डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम, सो आपको पता है यहाँ पे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम है. ओके, नाउ अब मास आपको डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम होती है, 1, जो अगर नहीं दी हुई है, अगर दी हुई तो अलग बात है, अगर नहीं दी हुई तो 1 मानते हैं. ओके, तो डेंसिटी हम कितनी मानते हैं? अगर डेंसिटी नहीं गिवन है तो हम लोग मानते हैं कितना, दैट इज़ 1 ग्राम. और मास हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम हम लोग को गिवन है, दैट इज़ 1 ml. सो हम लोग बोलेंगे कि मास, कितना मास आ जाएगा? तो मास विल बी इक्वल टू 1 ग्राम हमारे पास आ गया मास. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि 20 ड्रॉप का जो मास है दैट इज़ 1 ग्राम. ओके, तो आपको कितनी ड्रॉप का चाहिए, कितनी ड्रॉप का मास चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट. 1 ड्रॉप, इट इज़ बीइंग गिवन टू यू. सो आपको अगर 1 ड्रॉप का मास चाहिए तो आप क्या करेंगे, मास चाहिए ना, तो आप इसको 20 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 20. सो यू विल गेट 1 ड्रॉप का जो मास आएगा दैट विल बी 1/20 ग्राम. ओके, 1/20 ग्राम आपके पास किसका आ गया, ड्रॉप का आ गया. ओके, अब ये क्या आ गया आपके पास, मास आ गया, गिवन मास. सो गिवन mass is actually 1/20 gram of water. It means we have 1/20 gram of water. Okay, 1/20 gram can also be written as 0.05 gram. Got it? 0.05 gram it is being written to you. Okay, now you need to keep in mind here that it is being given, weight is being given to you. You need to find out the number of molecules of water first of all. So number of molecule of water, how many molecule of water will be there? What's the formula? Aram, tell me. How many Aram, tell me the formula of number of molecules of number of molecules का formula बताओ कितना आता है. अपॉन कुछ भी. सो हमारे पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स नंबर यू कैन राइट इट नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, एवोगाड्रोस नंबर. गॉट इट. सो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, गिवन मास हम लोग को कितना गिवन है, चलिए बताओ फटाफट से. गिवन मास कितना गिवन है, 0.05. वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 इंटू Na. ठीक है, क्या हमको ये आंसर चाहिए? नहीं. हम लोग को क्या आंसर चाहिए, हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अभी इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, कभी अभी कुछ सॉल्व करने बैठ जाओ. तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो बताओ इतने हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, दिस आर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो आप बेटा मुझे बताइए, अगर इतने हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप मुझे बताइए कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं. कैन एनीवन टेल मी, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं. सो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान समझना, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाँ, तुम लोग क्या,
किसी की आवाज़, किसी स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आती। H2O मैंने यहाँ पे रखा, H2 में हाइड्रोजन इज़ न्यूट्रॉन लेस एटम, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर वो प्रोटॉन पूछता तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होते हैं, ये दिमाग में याद रखना, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अगर हाइड्रोजन होता तो उसके पास एक प्रोटॉन होता, एक एटम के पास दो होते, दो एटम के पास, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात चल रही, तो हाइड्रोजन इज़ न्यूट्रॉन लेस, इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो दो के पास भी 0 न्यूट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन के पास जो न्यूट्रॉन होते हैं दैट इज़ 8 न्यूट्रॉन। इतना तो तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नीट और जेईई एग्जाम देने जा रहा हो तुम लोग, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल मिला करके, वाटर के पास टोटल मिला करके 8 न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जब वाटर के पास 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, सो अब आपके पास इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन will be equivalent to 0.05 upon 18 into Na into 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, whatever the answer comes that will be your answer. Got it? समझ में आया बच्चों? ओके, कॉपी करो क्वेश्चन को फटाफट से। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 15 ग्राम्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट इज reacted, or it means they are mixed together with dilute HCl, means the mixture of these two is reacted with dilute HCl, hydrochloric acid, and then 2.5 grams of carbon dioxide is being released, and you have to find out actually the composition of the mixture. So for this reaction that you must have some basic knowledge regarding to these reactions. Actually NaCl is a neutral salt which is made up of a strong acid and strong base. When they react together, sodium hydroxide when react with HCl it form NaCl. So it will not react with dilute HCl. There will be no reactions with dilute HCl. You need to keep in mind that NaCl do not react with HCl. If you don't have this knowledge, you will not be able to solve this problem. So in chemistry you must learn everything and should study everything thoroughly, so that you must understood the concept. If you have reacted these two both together, then you will not be able to solve this question. Only the sodium carbonate Na2CO3 when reacted with HCl, it will form sodium chloride plus water plus carbon dioxide. This is a simple reaction that we have studied in the 10th standard, that metal carbonate when react with acid they form salt plus water plus carbon dioxide. So this carbon dioxide that is we are having here right now, okay, that is only being released from when acid is being reacted with Na2CO3. You have to keep in mind that only the Na2CO3 is reacting with this one, with this acid. No HCl is being reacting with the NaCl. So the carbon dioxide is produced only from this sodium carbonate. Okay, so you know that here that we how much grams of dilute, and you see that 2.5 grams of carbon dioxide is being released here. So for solving such type of problems, you need to do one thing here, that we need to write up first of all a balanced chemical equations. For this one we need to write the balanced chemical equations. So here we have NaCl, we have this one, so we have to write here 2, so that it will become 2 NaCl. Okay, now we have the 2 hydrogen here, okay, and we have the 2 hydrogen here. Now this is the 2 chlorine atom, 2 hydrogens, one is carbon dioxide, and now it is balanced. Okay, got it? So you know that here that calculate the molecular mass of this one. Calculate the molecular mass of this one, Na2CO3. First calculate this one. What we need to do here is that we need to calculate the molecular mass of this one, and that is actually, you know, that is 46 for the sodium, okay, and we have the carbon here, that is 12, and that is 48 for this one. Okay, when you add these three, you will get 8 plus 8 16, and when you add these two you will get 10. So this is 106 gram. Okay, so when you are seeing that when 106 gram is reacting, then how much gram of carbon dioxide will produce? This 1 mole of carbon dioxide will be produced, and that will be going to have 44 gram mass. Is that clear, or having some doubt regarding to this statement? When 106 gram of Na2CO3 react, it produce 44, yani 1 mole of carbon dioxide. On balancing we find that 1 mole of this one is only producing 1 mole of this one.
So you find that when 106 grams of Na2CO3 is being reacting with this HCl, then only 44 grams of carbon dioxide is being produced. Okay, so now you have to find out the weight of this one. So for finding the weight of this one, you need to write here that which one you are finding, you have to keep on the right hand side. So 106 Na2CO3, okay, 106 Na2CO3 is being produced by 44 grams of CO2. ओके 106, हमें ये बताना है कि ये जो 2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट से बनी है. तो जो हमें निकालना होता है उसको हम लोग किस तरफ रखते हैं, इस तरफ, क्योंकि हम लोग को सोडियम कार्बोनेट का वेट निकालना है. तो उसको वी हैव टू ऑलवेज कीप इट ऑन द राइट, और जो हमें गिवन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे. तो अभी हमें पता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो 106 ग्राम हमें क्या मिलता है, Na2CO3 मिलता है. तो जब 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो हम लोग को कितना मिलेगा, 106/44 ग्राम, ये मिलेगा इतना है. तो अगर मैं बोलूँ 2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो फिर कितना मिलेगा, तो 106/44 इंटू 2.5. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे. इफ आई एम सॉल्विंग दिस वन, यू कैन राइट हियर 106/44 इंटू 5/2. यू कट इट, यू विल गेट हियर व्हाट, यू विल गेट हियर 5 and 3 53. ओके, एंड अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से दैट कि ये अगर मैं इसको 11 मान लेता हूँ, 55 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट. ठीक है, सो इसको डिवाइड करूँगा 55 समझ के, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 टाइम्स कट जाएगा. तो 4/5 और 5 5 25. ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई 25 को जब तुम डिवाइड करोगे बेटा 4 से, सो यू विल गेट योर आंसर. यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा. अच्छा, 25 नहीं था एक्चुअली, दिस, हाँ 5/2. सही है. आई एम करेक्ट. ठीक है, तो हमें मिल गया कि इतने ग्राम है. 25/4 लगभग इतने ग्राम हमें क्या मिलेगा, 25/4 दैट इज़ 6.25 हम लोग को क्या मिलेगा, दैट विल फाइंड दी कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. कि हाँ, ओके, गॉट इट. अच्छा, चेक भी कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को. ठीक है, गॉट इट. सो लेट्स मूव. गॉट, तो हमारे पास आया 6.25. तो 6.25 जो है हमें ग्राम मिला है, मतलब इस 15 ग्राम के अंदर 6.25 जो है वो क्या है, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट. वी हैव कैलकुलेटेड कि सोडियम कार्बोनेट 6.25 है. ओके, या 6% भी मान सकते हो उसको, कितना भी आप, मतलब 6.25 है लगभग, या 6, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, सो इसको 6 भी मान सकते हो तुम कि 6 ग्राम ये है. तो बाकी का 8 ग्राम क्या होगा, बाकी का 8 ग्राम 8 बोल रहा हूँ, बाकी का जो 9 ग्राम होगा दैट विल बी द NaCl, सोडियम क्लोराइड होगा. सो आप यहाँ पर कर सकते हो कंपोजिशन निकालने के लिए कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी आपकी, तो 9 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, NaCl. 9 ग्राम हमारे पास NaCl है, और हमारे पास 6 ग्राम अप्रॉक्स करिए हमारे पास Na2CO3 है. सो इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए 9 टोटल नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका परसेंटेज आ जाएगा, उसको 100, जो भी ये परसेंटेज आएगा उसको 100 से माइनस कर देना, तो दूसरा वाला आ जाएगा. गॉट इट. सो इसको करोगे यहाँ पर तो यू विल गेट 3 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा 3 से करोगे तो, और ये 5 से करोगे तो 20, तो इट विल बी अप्रॉक्स 60%. तो 60% NaCl और 40% Na2CO3 होगा. गॉट इट. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो सभी बच्चे, कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजन जो है किसी एक कंपाउंड में वो 3.2 है, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. तो एक बात याद रखना पहले ही कि जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, ठीक है, वेन एवर द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज़ बीइंग आस्क्ड, जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा जिसका ही पूछा गया उसके अंदर आप एक और एटम कंसिडर करोगे. अगर सपोज करो ऐसे बोला जाता था कि इसके अंदर 3.2% ऑक्सीजन है, तो कम से कम हम ये मानेंगे कि इसके अंदर एक एटम ऑक्सीजन का है. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब कम से कम इस कंपाउंड का में एक ऑक्सीजन एटम है.
अगर इसमें बोला जाता है कि 3.2% सल्फ़र है तो उसमें कम से कम मानेंगे कि भाई इसमें एक एटम सल्फ़र का है। ओके, गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया, समझ में आया। तो अब मुझे बताइए कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक एटम सल्फ़र का हो, सॉरी ऑक्सीजन का हो, और वो 3.2% उसका हो, मतलब उस कंपाउंड का 3.2% हो, तो आप मुझे बताइए कि उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब हम लोग ध्यान रखते हैं हमेशा कि 3.2% ऑक्सीजन और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है किसी का, सो उसके लिए सिंपल हम लोग को एक ऐसा वो करना होता है कि हम लोग को कम से कम एक एटम उसके अंदर कंसीडर करना ही पड़ता है। हम लोग एक एटम उसके अंदर कंसीडर करते ही करते हैं, समझ में आया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 3.2% किसी एक एटम का 16 ग्राम होगा ही होगा, क्यों होगा पहले बताओ मुझे। क्योंकि हम लोग ने ये माना है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हम लोग को। जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये क्वेश्चन ये हमेशा ध्यान रखना है, हम हाँ, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप इन माइंड हियर दैट कि उस कंपाउंड का, ध्यान समझो सभी बच्चे, कि उस कंपाउंड में हम लोग एक एटम पूरा मानेंगे, बस कम से कम एक एटम तो हो गई होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मानने के लिए। तो अभी किसी का 3.2% जो है वो 16 है, तो इसका 1% कितना होगा, दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाई 3.2। तो इसका 100% कितना होगा, दैट विल बी 16/3.2 इंटू 100। और जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट हेयर 10 हेयर, एंड व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट हेयर 32 से इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 5, ठीक है। एंड 5 व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय यू विल गेट 500 ग्राम विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, गॉट इट। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक इंसुलिन है, नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन है, इंसुलिन उसके अंदर 3% सल्फर, 3.4% सल्फर है, 3.4% सल्फर उसके अंदर होता है। तो द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन विल बी अबाउट, कितना होगा बताइए कितना होगा। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना हो तो फिर कितना होगा, कैसे निकालोगे जल्दी बताइए मुझे। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हाँ चलो, तो इसको भी हम लोग अच्छा हो तुम्हें दिख रहा है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई यार। अच्छा, उधर मैंने इरेज नहीं कर पाया ना, तो इट्स ओके कोई, चलो खैर बहुत आसान है कि अगर किसी का 3.4% जो है वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो जाहिर सी बात 16 होगा, सॉरी 32 होगा, सल्फर का 32 होता है, तो 32 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब भाई 32 हो गया यहाँ पर, अभी हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब 1% कितना होगा इसका, दैट विल बी 32 अपॉन दैट इज़ 3.4, तो इसका 100% बता दो भाई, 100% कितना होगा जब ये जब इस ठीक है। तो हम लोग 32 अपॉन 3.4 इंटू 100, सो एक डेसिमल हटाओ पहले तो फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। सो देखो इसको डिवाइड करने में टाइम लगाओगे तुम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है ये, लेकिन नहीं यहाँ पे 9 वो भी है, अप्रॉक्सीमेशन में है, नहीं तो फिर अगर डिजिट्स चेंज होते तो फिर आप डायरेक्टली बता सकते थे। सो यहाँ पर आप 1000 कर दीजिए इसको, 32 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 1000, ओके। सो इधर 16 डिवाइडेड बाई 74, 16 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, तो यू विल गेट 940 अप्रॉक्स, गॉट इट, गॉट इट, सिंपल था। कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.92 ग्राम्स ऑफ Ag2CO3 व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब हीट करते हैं स्ट्रांगली इसको, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द रेसिड्यू, आपको मतलब रेसिड्यू का मास बताना है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि रेसिड्यू मतलब जो रिमेनिंग है कंटेनर के अंदर जो बचेगा उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। सो अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, वो निकल गई बाहर, तो वो रेसिड्यू में नहीं काउंट होती। जो सॉलिड सब्सटेंस बचता है नीचे यानी लिक्विड में या जो भी बचेगा उसको हम लोग रेसिड्यू बोलेंगे, सॉलिड हो या लिक्विड हो, जो गैस निकल गई वो निकल गई। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास प्रीवियस नॉलेज होनी ज़रूरी है, कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप गड़बड़ कर दें। अगर वर्ड होता Ag2NO3, सॉरी Ag2CO3 को हीट किया गया है, जेंटली वर्ड हीट किया गया है, स्ट्रांगली वर्ड यूज़ नहीं किया गया है,
तो फिर जब हम Ag2CO3 को हीट करते हैं तब AgO बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट करें तो जो AgO बना था ये फर्दर रिमूव हो जाता है, यानी पहला स्टेप में क्या होगा, Ag2CO3 को हमने हीट किया, ठीक है, तो ये AgO बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बैलेंस हम लोग बाद में करेंगे अभी, ठीक है। Ag2O और CO ये बना देगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं, व्हेन वी आर हीटिंग इट फर्दर, तो जब हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये Ag2O भी फर्दर हीट होने के बाद Ag प्लस O2 यानी ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाती है। तो अगर जेंटली हीट कर रहे हो या हीटेड वर्ड यूज़ किया गया तो सिर्फ रिएक्शन यहाँ तक प्रोसीड हो रही है, तो फिर आपको AgO का रेसिड्यू निकालना पड़ता है कि कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है, या जो भी कुछ पूछा गया है, जितना भी वो पूछा गया इसके बारे में निकालना पड़ता है। लेकिन जब वर्ड स्ट्रांगली यूज़ किया गया है तो सिर्फ आपको सिल्वर का वेट निकालना है, सिल्वर के बारे में बात हो रही है, रेसिड्यू सिल्वर, जो भी पूछा गया हो उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया हो या खाली वेट पूछा गया हो या जो भी कुछ पूछा गया हो वो इसके बारे में बात हो रही है। गॉट इट, समझ में आया? गॉट इट? फिर से समझ लो, सिल्वर कार्बोनेट है, इसको जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, व्हेन वी आर हीटिंग इट इज स्ट्रांगली, तो वो दो स्टेप में फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। पहला स्टेप ये और सेकंड स्टेप ये, यहाँ तक, यहाँ जाकर एंड होती है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन होगी वो होगी Ag2CO3, स्ट्रांगली हीट किया तो Ag मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी आपको और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, ये गैस आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब आपने इसको जेंटली हीट किया हो या खाली वर्ड हीटेड लिखा हो, स्ट्रांगली हीट नहीं किया होगा, तब Ag2CO3 को हीट करने पर आपको Ag2O मिलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, इस बात को नहीं भूलना है बेटा, ध्यान रखना कि आपके पास जो टेस्ट होते हैं, जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके अंदर आपसे खाली यही नहीं कुछ ज़्यादा बल्कि आपकी प्रीवियस नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है। गॉट इट? समझ में आया? ओके। सो अभी हमारे पास यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि स्ट्रांगली हीट वर्ड यूज़ किया गया है, तो हमारे लिए जो रिएक्शंस होगी दैट विल बी डायरेक्टली, हमारे पास जो रिएक्शन है वो होगी Ag2CO3 को हमने हीट किया, स्ट्रांगली हीट वर्ड यूज़ किया गया है, तो Ag2CO3, ठीक है, इसको हमने हीट किया, स्ट्रांगली हीटेड। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि Ag बनेगा हमारे पास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करूँ तो मैं, तो मेरे पास 2Ag आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो मेरे पास 2Ag आ चुका है यहाँ पर, गॉट इट? 2Ag आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक ही कार्बन है और हाफ, मैं इसको बैलेंस करने के लिए हाफ ऑक्सीजन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बैलेंस हो चुकी है केमिकल रिएक्शन, नाउ इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, गॉट इट? हाफ ऑक्सीजन मिलके यानी एक ऑक्सीजन प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलके तीन बन जाएंगे, ठीक है, और प्लस ये पूरा बैलेंस हो चुका है। अब सवाल ये है कि अब तुम्हें सवाल को पूरा करना है और मुझे जवाब बताना है कि क्या जवाब होगा। जल्दी फटाफट से बताओ मुझे। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Ag2CO3 को जब हमने हीट किया था तो हमारे पास जो बना था Ag2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 हमें मिला था, ठीक है। ये दोनों गैसेस हैं, ये बाहर निकल गई, हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है रेसिड्यू से, तो ये मतलब है हमें। सो अब मुझे फटाफट से आप सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये 0.92 ग्राम इसको हीट किया गया है, इसको हीट किया गया। तो सबसे पहले तो आंसर हमारा याद रखना, अनरियलिस्टिक आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे 1000 कुछ बता दिया। हमेशा ध्यान रखना कि जो आंसर आपका आएगा वो 0.92 से तो एटलीस्ट कम ही आएगा, ये बात याद रखना। 1 ग्राम लेते तो बेटा 1000 से जितना उससे कम आएगा ना जो हमने लिया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। अरे यार मतलब सिंपल सी बात हुई ना कि जो चीज़ हमारे पास जितनी हमने ली उससे तो कम ही आएगा ना रेसिड्यू। 1 किलो लेंगे तो उससे कम आएगा, 10 किलो लेंगे तो उससे कम आएगा, और 10 किलो से ज़्यादा तो नहीं आ सकता, जितना हमने लिया नहीं उतना, तो उससे ज़्यादा कैसे आ जाएगा। चलो अब मेरी बात सुनो, फटाफट से इसका मास कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वन Ag2CO3 का। अगर Ag का वेट आपको पता है दैट इज़ 108 होता है, तो बताओ चलिए फटाफट से कितना होगा। सो कैलकुलेट करने के बाद हमने पता लगाया कि दैट इज़ 276 द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वन, और ये हमें 208 मिलता है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद हमें पता है, यानी डबल मिलेगा, सॉरी 2016 मिलेगा,
सॉरी 2016 बोल रहा हूँ, 216 मिलेगा। ओके, सो अभी हमें पता है कि जब ये हमें क्या निकालना है, हमें रेसिड्यू का मास निकालना है। ठीक है, तो याद रखना जो चीज़ हमें निकालना है, जिसका हमें वेट निकालना है, उसको हम लोग इस तरफ लिखेंगे। तो हमें पता है कि जब 276 ग्राम Ag2CO3 रिएक्ट करता है, या सॉरी हमने जो भी हीट किया, तो उससे हमें 216 ग्राम ये मिलता है। तो 1 ग्राम जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा 216/276 ग्राम। तो जब ये 0.92 रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा 216/276 इंटू 0.92। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 72/100, दैट विल बी इक्वल टू 0.72 ग्राम्स। गॉट इट? सॉल्व समझ में आया आंसर? समझ में आया आंसर? अभी 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचे हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शंस करते दौरान कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और उसकी ट्रिक्स होती हैं बहुत सिंपल। सो नेक्स्ट क्लास यानी कल मत मिस कीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग जी, तो अगली क्लास में हम लोग और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो जानते हैं उनको बता दीजिए आप कि केमिस्ट्री कैसे से क्लास चल रही है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रीजन। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रीजन। उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो पढ़नी है हम लोग को, किस तरह से आसानी से हम लोग कर सकते हैं बिना ज़्यादा लॉन्ग मेथड को यूज़ करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉपी करिएगा, और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। याद रखना कि जिसने रिवीजन करना छोड़, हाँ भेज देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जिसने रिवीजन करना, अपना रिवीजन का एक टाइम टेबल बना लो कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ी है, उसका इतने एक पहले दिन आज जो पढ़ी उसका कल भी रिवीजन होगा, फिर उसका 3 दिन बाद होगा, फिर उसका 1 हफ्ते बाद होगा, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद।